वेलकम बैक टू चाय चैट विद लवीना। हम बात कर रहे हैं कि कोविड ने हमें क्या सिखाया और उसका असर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से लेकर एंटरटेनमेंट, वेलबींग, हेल्थ सब पर क्या पड़ा, और पर्सनली अब हम क्या उससे सीखे हैं जो हम आगे लेके जाएंगे. And for me, I think I'm going to start by saying that COVID taught us whatever, because I was working a lot, but covering the Ukraine story taught me so much more. तो COVID के बाद अचानक से यूक्रेन हो गया, and I just felt कि यार ये when life is so transient, it is just, and at the same time it's important for us to work. So we can't say कि वो सन्यासी बन के कि भाई आप पैसा बहुत ज़रूरी नहीं होता. I mean, of course it's very important. So I want to ask each one of you, और अपने हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि आपने जो सीखा कोविड में इतना सारा, आर्या उसमें से कितना रूटीन अभी शामिल है? आई थिंक मेन थिंग आपने जैसे बताया कि कोविड जो इनर ट्रैवलिंग जर्नी किया और जो बड़े सवाल पूछे कि एक्चुअली लाइफ में ओनली फ्यू थिंग्स मैटर इफ़ यू रियली थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, कि आपका वेलबीन हो, फिजिकल वेलबीन, मेंटल वेलबीन, आप जो काम करते हैं, डू यू एन्जॉय इट, डू यू लव व्हाट यू डू, because 80% of your lifetime you spend working. Yes. So do you enjoy that? Does it give you fulfillment? Do you get along with your colleagues? Do you have a good team? Do you have a good value system? You know, personal value, how's the work culture? So I think that really shifted my focus in terms of, focusing on how can we empower people, how can I empower. Empowerment always starts with yourself. And I think my leadership style changed a lot. Before it was more in a sense of how we can get the best out of people, and now I think it's how can we empower anyone, because everyone's trying to unlock their own potential, and they might not be aware of how their mind is structured, the narrative they're adopting. So I think personally as a founder and CEO, I think my leadership style changed a lot. What is one thing that you've got personally in your life? I think I would say physical fitness and. तो क्या करते हो आप उसके लिए सुबह? So I do Pilates. I go for a run. मैं Hampstead Heath के इधर रहती हूँ, so go for a run in the park and play tennis twice a week. अच्छा, so this is permanent change. Yes, permanent change. मोहम्मद साहब? जी, मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर नहीं पाता था. उसके बाद मैंने काफ़ी सूर्य नमस्कार करना काफ़ी शुरू किया. हाँ. नमाज पढ़ना शुरू किया. उसके अलावा मैंने वॉक करना काफ़ी शुरू किया, जैसे आर्य ने भी कहा, तो वो अभी तक भी चलता है. प्रताप जी? इसमें ना मेरा बहुत एनीवे एज आई टोल्ड यू, मैं तो 25 साल पहले शुरू किया था मैंने. तो मतलब दूसरा एक चीज़ और क्या है ना, वो कहते हैं ना कि शराबी के साथ 7 दिन बैठो आदमी शराबी हो जाता है, जुआरी के साथ बैठो जुआरी हो जाता है. दिस इज इफ यू कैन पिक अप बैड थिंग्स इन 7 to 10 days time, I think even for the good thing, the only thing is you have to maintain that consistency. So they believe that, my firm belief is do something for 21 days and then it becomes part of your life. So initial 20-25 days it was a problem, because then you had to really, that's what I think Bhupinder ji also mentioned, you have to start something. Once you start, then it becomes part of your life. Then you will not be able to discontinue. तो आप बिजनेस वाइज क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? So business wise अभी क्या हो गया है कि while we were anyway tech and digital driven bank, अभी any process that we design, any product that we design, उसका एक पहला thought ये होता है कि the current situation, in case if similar situation gets repeated. So you think about that situation? We think about that, and we feel that customer should be able to drive everything without getting impacted. He should be able to perform the way he's performing today. And as you rightly said, be it Ukraine war, be it your pandemic, everything has taught that things have to be. So that's a permanent change of making a lot of life digital, which is very difficult for me. 21 साल पहले इन्होंने वो वॉक शुरू किया था, वो कंटिन्यू किया, लेकिन कोविड ने आपने क्या सिखाया? So I'm saying वही एक consistency. एक तो आपका. अच्छा, you maintained your consistency. But is there any introspection that came through COVID which you have felt and retained? Yeah. So one of the things I think during this time when we were working from home, I think the time that you can spend with the family. That was something which was so. Your wife started recognizing you again. Wife started recognizing and kids started recognizing again. I think so. All of us, when we used to go to the garden together, I think that is something which paid off. And please continue that. So that's continued. So every weekend now, son and daughter, they also
accompany to the garden at least on So the you've weekends. made that a routine. That has become a routine. Oh, that's very good. भूपिंदर जी, आप सबको माइंडफुलनेस सिखाते हैं, आप क्या करते हैं? मैं क्या आ रहा हूँ, आपने सबसे पहले कहा कि मनी I would say money is important and it is equivalent to oxygen as well. So जो कहता है कि मनी important नहीं है तो मेरा बैंक अकाउंट ले जाओ भाई, Simple मैं सी- उससे मांग लेती हूँ पैसे. simple सी बात है, कहता है कि money is not important. तो भाई हमारा अकाउंट है, दे दो. और उसके बाद दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा है कि हमारी लाइफ में 3 तरह के लोग आते हैं. एक तो होते हैं नॉर्मल, मिले 2 घंटे 4 घंटे हमने स्पेंड किए उनके साथ, कोई ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. एक होते हैं वो फ्लैट उन्हें कह दो कि उनका कोई फर्क नहीं है जैसे. और सेकंड हमारी लाइफ में होते हैं लोग जो मिलते हैं आपको 2 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए, वो आपको इंस्पायर करते हैं और आपकी लाइफ बदल जाती है. दैट्स अ रेयर थिंग. और उन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी, हम सेल्फी लेने में ज्यादा इंपॉर्टेंस फील करते हैं रादर देन लर्निंग समथिंग फ्रॉम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन. कोई बड़ा आदमी मिलता है, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं रादर देन लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम कि वो वहां तक कैसे पहुंचे. कोई एक क्वेश्चन पूछे, कोई बड़ा आदमी मिलता नहीं, सर सेल्फी खींच ले, मैंने फेसबुक पे डालनी है, लोगों को जवाब है. This I learned very early on in my career because I had exposure to very big people. हाँ कि knowing great doesn't make you great. You have to work to get there, Yeah. right? और तीसरी तरह के लोग हैं जो वो होते हैं कि उनके आप मिले 10 मिनट, उनके पास नेगेटिविटी के सिवा कुछ नहीं है. अगर फोन कर लो यार पता नहीं दुनिया आज ही खत्म हो जानी है. आई कॉल देम एनर्जी वैम्पायर्स, जो आपकी ना एनर्जी खींच लेते हैं. रिश्तेदार भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, अपने घर में भी होता है कोई ना कोई. सो मैंने सबसे बड़ी चीज कोविड के दौरान ये की क्योंकि टाइम बहुत होता था. शुरू में क्या हुआ, फोन ना ऐसे होता था कि कहानियां चल रही हैं. तो देन आई रियलाइज कि इस बंदे से बात करके मेरी एनर्जी लेवल डाउन जा रही है. फिर मैंने वो काटने शुरू किए जो एनर्जी वैम्पायर्स थे ना मेरी लाइफ में. फिर Very good. मैंने उनके फोन उठाने बंद कर दिए, फिर उन्हें फोन करने बंद कर दिए. मैं लाइक तो ना कि आपने फोन किया तो मैं उठाऊं. हाँ. But last and not the least I hope, एक शब्द जी हाँ while going of what you pledge आज की इस चाय चैट में, which I feel is quite inspirational to me, कि आप क्या प्लेज करके जा रहे हो. This is what I'm going to do. जो मेडिटेशन है, जो साधना है, आई वांट टू इंक्रीज दैट. जो भी मैं अभी कर रहा हूँ, दैट्स माय पर्सनल थिंग, वी डोंट नीड टू शेयर इट ऑन द थिंग, बट आई वुड लव टू एंड आई विल ट्राई टू इंक्रीज इट. I will try to double it as well. Maybe with the age-old home, I mean that's something wherein if we can contribute something there, So how either by will way you of contribute? timing or by way of whatever support which we can. So extend. you will go to an age-old home. so I think- Old or age home. somebody need, yeah, correct. That's I think. So you something. will find that and tell me Yeah, कि आपने एक उस व्यक्ति के लिए क्या किया. absolutely. ओके. अरे मैं बहुत फ्यूचर में सोचती हूँ हमेशा, यू नो ये करना है, कंपनी को इधर जाना है. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स लाइक यू सेड, यू इवन टू एन्जॉय व्हाट यू हैव अक्यूमुलेटेड एंड अप्रिशिएट द जर्नी ऑफ हाउ फार यू हैव कम. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू जस्ट बी मोर प्रेजेंट in every moment and feel more gratitude from small to big things. So you will write gratitude every day. Yes, yes. Okay. आप क्या करेंगे? हाँ, मैं एक चीज़ अपने में बदलना चाहता हूँ. वो ये कि मेरा रियाज तो मैंने जाहिर सी बात है, जो सर ने कहा कि कुछ चीज़ें हमने बढ़ाई है, रियाज का टाइम बढ़ाया है. वॉक भी करता हूँ, वो भी बढ़ता रहता है. लेकिन जो एक जल्दी सोने की आदत है वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी. कितने बजे सोते हैं? 12:30. 12:30. 11 कर दीजिए. जी. बेस्ट स्लीप जो होती है वो 2 बजे के करीब आती है. क्योंकि गालिब ने भी कहा है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत. सो अब अंत तो गाने से ही होना चाहिए. बिल्कुल होगा. ये गाना बड़ा बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है. रफ़ी साहब का मैं हर शो में गाता हूँ, उसको भी बड़ा मज़ा आता है गाने. जी, पहले मुझे 2 लाइनें बहुत मैं आपको पसंद है मेरी वो. गज़ल की सुनाऊंगा जो मेरी अपनी खुद की मेरी पहचान है उससे. बशीर बद्र की है वो. ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई. ये मेरी खुद की गाई भी है. और एक रफ़ी साहब का गाना मैं जाते जाते अपने जितने सुनने वाले हैं आपके इस प्रोग्राम को, 14वीं का चांद हो
या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। क्या बात है, थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद, Thank you so बहुत much. शुक्रिया और थैंक यू एवरीबॉडी, बिकॉज मैंने तो मास्टरनी वाला काम भी किया ना आज थोड़ा सा। सो आई एम प्लेजिंग एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक समथिंग, एक चीज, वन स्टेप एट अ टाइम, एक बदलाव अपनी ज़िंदगी में, चाहे वह आपने कोविड से सीखा हो, चाहे किसी और चीज़ से सीखा हो, that you are going to take forward. Do write into me and let me know whether you are able to do and what are you doing. That will be great for me and it will keep me inspired as well, क्योंकि मुश्किल होता है consistency, मेरे लिए बहुत मुश्किल है. So do write into me on chaychat@aajtak.com or Twitter me @Lavina Tanton. Thank you, take care and God bless.